Welcome to Educare again. So we'll continue from our topic of CVP. Kit practice कर रहे थे हम इसकी, जिसका next part ये है कि in this next question a company has calculated its margin of safety as 20% on budgeted sales and the budgeted sales are 5,000 unit per month. What would be the budgeted fixed cost if the budgeted contribution was $25 per unit? तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट. सो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए यू हैव बीन गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज? दिस इज बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स divided by budgeted sales. So 20% is the margin of safety. Budgeted sale is 5,000. We don't know about the break even sales, तो उसे x लिख लेते हैं, divided by budgeted sales 5,000. So जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे इस इक्वेशन को, तो इट विल बी 1000 इज इक्वल टू 5,000 को 20% से मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया, इज इक्वल टू 5,000 minus x, and then x is equal to 5,000 minus 1,000, तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी आपके पास 4,000 यूनिट्स. इन टर्म्स ऑफ यूनिट आपके पास ब्रेक इवन सेल आ जाएगी 4,000 यूनिट्स. नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द fixed cost. For this we will use the formula of break even point is equal to, ये चूँकि यूनिट्स में फार्मूला हमारे पास होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड कंट्रीब्यूशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन एज $25 पर यूनिट. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज 4,000 यूनिट. Fixed cost we don't know about that. Contribution per unit is $25 per unit. So by cross multiplying we can find out the fixed cost as 4,000 units multiplied by $25 per unit, and it will be I think so $1 lakh. $1 lakh हमारे पास आ जाएगी fixed cost. So the right option will be A. Next question is, which of the following describe the margin of safety? Number 1, actual contribution margin achieved compared with required to break even. Second, actual sales compared with sales required to break even. तो यही margin of safety है. इन्होंने margin of safety percentage की बात नहीं की, margin of safety की बात की. And we know that margin of safety is a difference of budgeted sales minus break even sales. तो second option में कह रहे हैं actual sales compared with sales required to break even. So this is the right option. Next, actual versus budgeted net profit margin को compare करना margin of safety नहीं है. Actual versus budgeted sale और actual और budgeted का comparison भी margin of safety नहीं है. Margin of safety comparison है budgeted sales और break even sales का. Next question, a company has established a budgeted sales revenue for the forthcoming period of 5 lakh with an associated contribution of 2,75,000. सो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से आप CS रेशो यानी कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आर 1,37,500 एंड फिक्स सेलिंग कॉस्ट इज 27,500. सो वी नीड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स. फर्स्ट आप CS रेशो कैलकुलेट करें, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए द फार्मूला टू बी यूज इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो. So CS ratio again stands for contribution sales ratio. Contribution is 2,75,000. Sale is 5 lakh. So इसका ratio क्या आ जाएगा in terms of percentage? Divided by 5 lakh. So it will be 55%. 55% हमारे पास इसका ratio आ गया. Now we need to consider what is the fixed cost. Fixed cost is in total is 1,37,500 plus 27,500, and it will be 1,37,500 plus 27,500. This is 1,65,000. So break even point in
terms of amount, fixed cost divided by CS ratio. Fixed cost हमने find out की, this is 1,65,000, while the CS ratio is 55%, or you can say 0.55. So what will the sales revenue? 1,65,000 divided by 0.55, this is 3 lakh, exactly 3 lakh. So 3 lakh is a break-even sales revenue. Next question is sales units are 1,28,000, sales revenue is 6,40,000, variable cost is 3,84,000 and fixed cost is 2,10,000. What sale revenue is required to earn a profit of 65,000? So we need to calculate a break-even point where target profit has been given to us. So solve it out first. Break-even point is equal to fixed cost plus target profit divided by contribution per unit, or we have to calculate it in amount. You can use the formula contribution sales ratio. So first we need to calculate the contribution sales ratio. How to calculate the contribution sales ratio? If the sale figure is 6,40,000 and variable cost is 3,84,000, then the contribution would be 6,40,000 minus 3,84,000, and it will be 256,000. 2,56,000 की आपके पास आ गई contribution. Now to calculate the contribution sales ratio, it is 2,56,000 of contribution divided by sales, which is 6,40,000. This is 40% or 0.4 is your contribution sales ratio. How to calculate contribution sales ratio? This is contribution जो कि अभी हमने calculate की 2,56,000. कैसे calculate की? Sales और variable cost का difference divided by sales जो कि 6,40,000 हमें amount में given थी. With the help of this, we have calculated that contribution sales ratio is 0.4. Now, the sum of fixed cost plus target profit is divided by this ratio to find out the sales revenue to earn a profit of 65,000. Here fixed cost has been given as 2,10,000 and profit is 65,000. So 2,10,000 plus 65,000 of profit divided by 0.4, which is contribution sales ratio. So 2,10,000 plus 65,000 gives you 2,75,000 divided by 0.4, which is contribution sales ratio. The sales figure would be 6,87,500. So what is the right option for us? This is C option. In the next question, how many sales units are required to earn a profit of 52,000? The question is same, but this time we haven't been asked to calculate the sales revenue in terms of amount. हमें ये नहीं कहा गया कि sales revenue in terms of amount बताएं, बल्कि हमसे sales unit पूछे गए, right? तो you can calculate in the same way and then convert this information, your answer, into number of units. This will be the easiest way, because अगर आप second बात ये करें कि sales revenue को sale price per unit में convert करें and then फिर variable cost per unit में convert करें, तो फिर आपके पास जो है वो क्या आ जाता है, डिफरेंस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं कि 2,10,000 की हमारे पास फिक्स कॉस्ट है प्लस 52,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 0.4 CS रेशियो, और ये आपके पास आ जाएगा 2,10,000 प्लस 52,000 डिवाइडेड बाय 0.4. तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो आ गया 6,55,000 इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, बट हमें तो ये चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट. फॉर दिस वी कैन डिवाइड दिस इंफॉर्मेशन कि सेल्स रेवेन्यू को हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, सेल प्राइस से डिवाइड कर दें. तो सेल प्राइस से डिवाइड कर देने से हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट इस क्वेश्चन में सेल प्राइस भी नहीं गिवन.
दिस इंफॉर्मेशन सेल्स यूनिट एंड सेल्स रेवेन्यू एंड सेल्स यूनिट की इंफॉर्मेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेल प्राइस। मीन्स यू नो दैट कि सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेल्स यूनिट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है तो सेल रेवेन्यू को सेल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेल्स यूनिट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू गिवन है हमें 6,40,000, सेल्स यूनिट गिवन है हमें 1,28,000। So we can find out the sale price by dividing 6,40,000 by 1,28,000। तो 6,40,000 जो टोटल रेवेन्यू है उसे 1,28,000 यूनिट से डिवाइड कर दिया, हमारे पास सेल्स रेवेन्यू पर यूनिट आ गया $5। अब $5 का यूनिट $5 की सेल प्राइस है एक यूनिट की। सो वी वांट टू फाइंड द सेल्स रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट। 6,55,000 हम फाइंड आउट कर चुके हैं सेल रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ 5, हमारे पास 1,31,000 यूनिट्स की टर्म में आंसर आ जाएगा। सो इट विल बी 1,31,000, अगेन सी ऑप्शन। So next question, where selling price is given as 12.5, fixed production cost and non-production cost is given, and as well as break-even sales per period is given. We are required to calculate the contribution per unit. So it will be कि आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, सेल प्राइस आपके पास पर यूनिट के हिसाब से गिवन है। सो क्वेश्चन इजी है, नॉट सो डिफिकल्ट। अगर इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पूछने का कहा होता तो थोड़ा सा टफ हो सकता था। यहाँ पे सिंपली हमने फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। 77 प्लस 1,46,000 इज इक्वल टू 1,23,000। तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 77,000 प्लस 46,000 और ये आ रही है आपके पास 1,23,000। अब आप ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला लगा रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट भी पता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज आल्सो गिवन टू अस एज 24,600। 24,600 इज ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट इज 1,23,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, यह आ जाएगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 1,23,000 divided by 24,600. So it will be 1,23,000 divided by 24,600 and this is 5. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास $5 की आ जाएगी। Next question, what will the effect on the margin of safety if unit variable cost and total fixed cost both increase assuming no change in the selling price or sales volume? तो इस किस्म के क्वेश्चन में वी हैव टू सपोज सम फिगर्स कि आपके पास मेंशन कर रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या फ़र्क होगा अगर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों बढ़ जाएं। सो लेट्स सपोज सम फिगर्स लाइक सेल प्राइस आप ले लेते हैं 100, वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं 60 और फिक्स कॉस्ट आप कंसिडर करते हैं 4,000। इन दैट केस आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जो कि डिफरेंस है इन दोनों फिगर 100 और 60 का, यानी $40 पर यूनिट। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 100 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट हमने ये कंसिडर करना है, सपोज करनी है हमने फिगर कि 100 यूनिट तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। सपोज दैट द बजटेड सेल्स जो है ना आपके पास 200 है, बजटेड सेल्स आपके पास कितनी है? 200 यूनिट। इन दैट केस मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगा आपके पास? 200 यूनिट माइनस 100 यूनिट, 100 यूनिट्स। तो आपने क्या किया? सपोज किया कि अगर सेल प्राइस 100 हो, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, फिक्स कॉस्ट भी अपने पास है, सपोज की 4,000 और ब्रेक बजटेड सेल्स 200 यूनिट्स, ये हमने सपोजिशन की। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट 3 इन्फॉर्मेशन यानी सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट से हमने फाइंड आउट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि $40 आ गई, फिक्स कॉस्ट को $40 से डिवाइड किया, 100 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। दैन टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने बजटेड सेल में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दी, बजटेड सेल में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दी और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल गया
100 यूनिट। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट कि आपके पास क्या चीज़ें कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। तो लेट्स सपोज सेल प्राइस आपके पास 100 ही है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास होगी है 70, फिक्स कॉस्ट आपके पास इंक्रीज होके 6000 होगी, तो बजट सेल्स तो वेरी 200 यूनिट। इन दैट केस आपके पास क्या फ़र्क पड़ेगा कि ब्रेक इवन सेल्स अब आपके पास आ जाएंगी 6000 की फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे 30 के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। सो 6000 divided by 30 gives you 200 of break even sales. break even sales 200 आ गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करने के लिए बजटेड सेल में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस किए जाते हैं। तो बजटेड सेल्स 200 यूनिट है, ब्रेक इवन सेल्स भी 200 यूनिट है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 आ गई। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले था 100 यूनिट, अब हो गया है 0, तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है, कमी आ रही है इसमें। सो आंसर वुड बी decrease, A option. Next question is same like the question जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सॉल्व किया था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। The following plan results are given to us: sales unit 1,12,000, sales revenue 1,08,000, variable cost and fixed cost. First question की requirement है what sale revenue is required to earn a profit of 5,000. तो चूँकि target profit given है, so it will be ब्रेक इवन पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, और चूंकि आंसर हमें अमाउंट में चाहिए तो दिस विल बी कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो कि जिससे हमने इसे डिवाइड करना। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट द कंट्रीब्यूशन। यू नो दैट कि कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें। सेल्स यहाँ पे टोटल 1,08,000 गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास गिवन है 60,480। सो इट विल बी 40,320 जो कि आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है, राइट। एंड सेकंड इज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो यानी CS रेशियो। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन 40,320 है, सेल्स आपके पास 1,08,000 है, डिवाइड कर देने से आप कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। सो इट विल बी 40,320 डिवाइडेड बाय 1,08,000, तो ये 40% आ जाएगा। देन वी हैव टू डिवाइड फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो है 0.4। सो इट विल बी 36,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 0.4 एंड दिस इज 1,02,500। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, यानी ऑप्शन है हमारे पास C. Now in the next part of question they have asked that margin of safety आपको पूछा गया in units, ठीक है, margin of safety. So margin of safety, we have to calculate margin of safety simply, and for this we have to calculate the break-even sales in terms of unit, and break-even sales in terms of unit find out करने के लिए contribution per unit calculate की जाती है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना आपके लिए कैसे पॉसिबल है, टोटल कंट्रीब्यूशन जो कि आपको गिवन है 40,320, उसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें। यानी इफ़ वी आर अर्निंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40,320 इन टोटल बाय सेलिंग 1,12,000, अगर हम 40,320 की कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं 1,12,000 यूनिट सेल करके, तो एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 40,320 डिवाइडेड बाय 1,12,000, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन आ जाती है 0.36। सो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है आपके पास 36,000
डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास आ जाती है 0.36। तो जब हम 36,000 को 0.36 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 1 लाख यूनिट्स, हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। ये यूनिट्स की टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। नाउ टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप बजटेड सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देंगे। बजटेड सेल्स 1,12,000 इज गिवन एज बजटेड सेल्स, और ब्रेक इवन सेल्स अभी हमने फाइंड आउट की 1 लाख, तो उनका डिफरेंस 12,000 हमारे पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द total fixed cost for the period is given as 1600,000. How many units will the organization need to produce and sell to generate a profit plus of 2,50,000? So fixed cost भी given है, target profit भी given है, we have to find out कि कितने यूनिट हम सेल करें, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको नहीं दी हुई, बट सारा डाटा गिवन है कि जिसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Here you can see that all the cost is variable cost, direct material, direct labor, direct expense, variable overhead, सब variable cost हैं। तो सेल प्राइस 130 में से वेरिएबल कॉस्ट आप प्लस कर दें तो 80 की कंट्रीब्यूशन आ जाती है। नाउ आपने ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला लिखना है, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय contribution per unit. So fixed cost is given as 1600,000, target profit is 2,50,000, contribution per unit is $80 per unit. So it will be 16 lakh of fixed cost plus 2,50,000 of profit divided by $80 per unit, which is said to be the contribution per unit. It gives us a break even sales of 23,125 units. तो चूंकि आपसे आंसर यूनिट्स में कहा गया है, so again this is C answer. Now the next question, variable cost is given, variable non-manufacturing cost is given, fixed manufacturing and non-manufacturing cost is given, and selling price is given. The contribution sales ratio is required. So how to calculate the contribution sales ratio, जिसके लिए हमें contribution को sales से divide करना पड़ता है, और इसके लिए पहले आपको contribution find out करनी पड़ेगी। contribution कैसे find out करते हैं? To calculate contribution you have to deduct variable cost from sales, and variable cost here is given as 7.6 plus 1.4, that is 9 I think so, well sale price is 17.5. So it is 17.5 minus 9 and it is 8.5. 8.5 की contribution होगी। अब contribution sales ratio यानी CS ratio फाइंड आउट करने के लिए contribution को डिवाइड कर देंगे sales से, मल्टीप्लाई बाय 100, चूँकि उन्होंने टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपसे रिक्वायर की है। So this will be 8.5 divided by 17.5, and as we have to express it in terms of percentage, 100 से multiply कर देते हैं, that is 48.57%. So this will be round to 1 decimal उन्होंने कहा है, तो हम इसे 48.6 कर देंगे। The next question, a company has a single product, the following budgeted information is given: sales unit, sales revenue, variable cost and fixed cost. You have required to calculate the sales revenue, break even point in sales revenue. The sales revenue is required to break even is, so we have to calculate it in terms of amount. So amount में calculate करने के लिए formula, remember that fixed cost divided by CS ratio. तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट CS रेशो, जिसके लिए हमें पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी होगी।
रिमेंबर कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके। सेल्स टोटल इज गिवन एज 10 लाख और यू कैन से 1 मिलियन minus variable cost which is in total 5,90,000 gives you a contribution of 4,10,000. Now to calculate CS ratio, CS ratio is said to be contribution divided by sales multiplied by 100 in terms of percentage अगर करना चाहें आप सिंपली भी कर लें। Contribution is 4,10,000, sales is 1 मिलियन और 10 लाख, तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो 0.41 आ जाता है। सो फिक्स कॉस्ट 3,50,000 divided by CS ratio which is 0.41. So 3,50,000 divided by 0.41 and it is 8,53,658. सो उन्होंने आंसर मांगा है नियरेस्ट 1000 में, तो हम इसे लिख देंगे 8,53,658 है तो इसे लिख दिया जाएगा 8,54,000। Next question, at the end of the production process, a company has 10,000 unit of a product which can be sold for $4 per unit, यानी ये सेल प्राइस है। However, if it is further processed at the cost of $7 per unit, it can be sold for $13 per unit. The net benefit of the company from further processing product Y is, कितना benefit होगा इसे further process करने का। So here we need to calculate कि अगर first time 10,000 unit सेल किए जाते हैं $4 per unit के हवाले से, तो it will give a revenue of 40,000, right? अब हम ये देखते हैं कि incremental revenue कितना आ रहा है। अगर हम इसे further process करेंगे $7 per unit के हिसाब से, तो we can sell it for 13. तो in that case we will earn a revenue of increased revenue of $6. कैसे कि $13 का हम सेल कर सकेंगे, फर्दर $7 की कॉस्ट खर्च करके, तो $6 का हमें जो है वो बेनिफिट होगा। अब अगर 10,000 यूनिट्स पे $6 का बेनिफिट होता है तो टोटल बेनिफिट हो जाएगा 60,000 और बेनिफिट में इंक्रीमेंट कितना हुआ, इजाफा कितना हो गया, फ्रॉम 40 to 60 20,000 का इजाफा हो गया। सो दैट इज ऑल।